Classroom in a Slum is written by Stephen Spender, who was an English poet, novelist, and an essayist. In an elementary school classroom in a slum, Stephen Spender has concentrated on themes of social injustice and class inequalities. Through the example of slum children, he attacks those who are exploiting the weaker sections of society. Now let's take a look at the poem. Far, far from gusty waves, these children's faces, gusty waves means crowded areas, like rootless weeds, the hair torn round their pallor. Rootless weeds means are of no value, plants which are of no value means useless plants. The hair torn round their pallor, pallor is faces. The tall girl with her weighed down head. The paper seeming boy means as thin as a paper, with rat's eyes, with very big eyes, the stunted unlucky hair of twisted bones, reciting her father's gnarled disease. Father's gnarled disease means which are comes from the father, which are herited from its father from generations. His lesson from his desk. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrel's game, in tree room other than his. The poet here describes the pathetic and miserable conditions of the children sitting in the classroom in a slum school. This stanza covers the different kind of children sitting in the classroom in a slum school. The children's faces are unlike the usual children of schools, means ये children के जो faces थे वो normal children की तरह नहीं थे. They are very far from the beautiful sights of nature. They look weak and hungry. Children ने अभी से पहले nature भी नहीं देखी थी, nature का enjoy भी नहीं करा था, और children बहुत ज़्यादा weak भी थे, hungry भी थे. The unkempt hair looks like rootless weeds on their pale faces. उनके हेयर जो थे वो कॉम्प्ड भी नहीं थे, मीन्स वैसे फैले हुए हेयर्स थे, वो उनके पूरे फेसेस पर बिखरे हुए थे. Unlike other school children who are usually energetic and full of life, these children seem withered and lifeless. Other school children कैसे होते हैं, एक ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, पूरी लाइफ को एंजॉय करते हैं, पर ये चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा ही पुअर चिल्ड्रंस थे जो स्लम स्कूल में थे. वहाँ पे बहुत बिल्कुल भी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, और ये चिल्ड्रन बिल्कुल ऐसे बैठते थे जैसे इनमें लाइफ ही ना हो. The children of the slum are also unwanted in society, just as weeds are unwanted in a garden. ये जो चिल्ड्रन थे स्लम के, ये सोसाइटी में अनवांटेड थे, मीन्स सोसाइटी में कोई भी चाहता नहीं था. जैसे वीड्स होते हैं, वीड्स को कोई भी फार्मर नहीं चाहता, मीन्स वीड्स तो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, तो उसी तरह इन चिल्ड्रन को भी अनवांटेड कैटेगरी में रखा गया था. A tall girl in the classroom is very depressed. एक वहाँ पे टॉल गर्ल थी क्लासरूम में, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, मीन्स डिप्रेशन में थी. शी कीप्स हर हेड डाउन बीइंग बर्डन बाय सैड थॉट्स. उसने अपना हेड नीचे कर रखा था और बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा अपसेट थी. द गर्ल इज़ परहैप्स फिजिकली एंड मेंटली एग्जॉस्टेड टू हर पॉवर्टी. पॉवर्टी में मीन्स गरीबी होने की वजह से वो गर्ल बहुत ज़्यादा मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्टेड थी. द अदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर नॉट इन अ बेटर सिचुएशन आइदर. Just like a girl who is burdened with the problems in her life, there is a boy sitting in the class who is as thin as paper, undoubtedly because of malnutrition. उस गर्ल की तरह वहाँ पे अदर चिल्ड्रन भी थे. जैसे एक बॉय बैठा था, वो बहुत ज़्यादा पेपर सीमिंग बॉय मीन्स पेपर की तरह बहुत ज़्यादा थिन था. उसकी बिग बिग आइज थी जो इधर उधर फाइंड कर रही थी, चीज़ें ढूंढ रही थी, और बहुत ज़्यादा पतला बच्चा था, वो बहुत थिन स्टूडेंट था. So he has big eyes, those of a rat. और वो इतना ज़्यादा वीक था, बहुत ज़्यादा थिन इसलिए था क्योंकि वो malnutrition था. Because of malnutrition, yet another boy in the classroom has inherited his father's disease. एक और बॉय था जिसने अपने फादर की डिसीज़ को अपने साथ ले लिया था, मीन्स फ्रॉम द जीन्स से कुछ डिसीज़ ऐसी होती है जो पेरेंट्स से बच्चों में आ जाती हैं. Because of the disease, he has stunted growth and his bones are twisted. उस डिसीज़ की वजह से उसकी बोन्स बहुत ज़्यादा वीक होकर ट्विस्ट हो गई थी और बहुत ज़्यादा स्टंटेड था उसकी ग्रोथ, मीन्स उसकी ग्रोथ हो ही नहीं रही थी. ही हैज़ इनहेरिटेड दिस डिसीज फ्रॉम हिज फादर एंड रिसाइट्स हिज लेसन फ्रॉम द डेस्क इन अ मेलो बट वीक वॉइस. वो क्लास में डेस्क पर बैठकर डेस्क पर खड़ा होकर अपनी लेसन तो रिसाइट कर रहा था, पर बहुत ज़्यादा वीक वॉइस थी.
उसकी बहुत ज़्यादा वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा वीक वॉइस आ रही थी. There is another sweet boy sitting at the back of the class. He is sitting there unnoticed and dreaming of squirrels playing in a tree. वहाँ पे एक स्टूडेंट और बैठा हुआ था, एक चाइल्ड और बैठा हुआ था. वो क्लास के बिल्कुल पीछे बैठा हुआ था बैक पर और अननोटेड. अननोटेड मीन्स सबने उसको इग्नोर कर रखा था. उसे क्लास से कोई मतलब नहीं था, उसने क्लास को इग्नोर कर रखा था, बाकी सबने उसको भी इग्नोर कर रखा था. स्वीट एंड यंग, हिज आईज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम. वो उसकी आईज मीन्स वो ड्रीम कर रहा था कि स्क्विरल्स ट्री पर कैसे खेलती होंगी. द डल एंड मोनोटोनस एटमॉस्फेयर इन द क्लासरूम इज परहैप्स अनेबल टू अरेस्ट हिज अटेंशन. क्लास का जो एटमॉस्फेयर था, क्लासरूम का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा डल था, बहुत ज़्यादा खराब सा एटमॉस्फेयर था, इसलिए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. वो अपने लेसन्स पर ध्यान देता था नहीं देता था, उस पर कोई अटेंशन नहीं करता था. वो उसका लेसन या उसका दिमाग जो था वो ध्यान क्लासेस में नहीं था, क्लास के बाहर था. मीन्स और कुछ सोचने में लगा होता था. क्लास में वो कभी भी फोकसली अटेंशन नहीं करता था. ऑन सोर क्रीम वॉल्स, डोनेशंस, शेक्सपियर्स हेड, क्लाउडलेस एट dawn, civilized dome riding all cities. Belt flowery Tyrole's valley, open-handed map, awarding the world its world, and yet for these children, these windows, not this map, their world, were all their futures painted with a fog. Now the second stanza describes about the dirty conditions in the classroom. It describes about the sceneries and appearance of the classroom. Here on the walls, the paint was not good. उसका पेंट भी वॉल्स का उतरा हुआ था. डोनेशंस आई मीन जिसने उस स्कूल को बिल्ड करने में, स्लम्स क्लासरूम को बिल्ड करने में डोनेशंस दी थी, उनके नेम्स वॉल पर लिखे हुए थे. शेक्सपियर सेट, वहाँ पे शेक्सपियर का एक पोर्ट्रेट भी लगा हुआ था, मीन्स शेक्सपियर की पिक्चर लगी हुई थी वॉल पर. क्लाउडलेस एट dawn, civilized dome riding all cities, bell flowery Tyrole's valley. ये एक सीनरी का डिपिक्शन है. वहाँ पे एक सीनरी भी लगी हुई थी. ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, एक वर्ल्ड के मैप की भी पिक्चर वहाँ पे लगी हुई थी. एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड. बट इन बच्चों के लिए इस जो क्लासरूम की विंडोज थी उसके बाहर का उनके लिए कोई भी वर्ल्ड नहीं था, क्योंकि उन्होंने कोई वर्ल्ड देख ही नहीं रखा था. वो वहाँ पे मैप का होना भी एक बैड एग्जाम्पल था उनके लिए. मीन्स मैप का होना ना होना, सीनरीज का होना ना होना उनके लिए कुछ भी नहीं था. उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं था, इसलिए शेक्सपियर की पोर्ट्रेट होना भी वहाँ पे उनके लिए यूजलेस थी. उनको कोई भी एजुकेट करने वाला नहीं था, कोई पढ़ाने वाला नहीं था, इसलिए उन्हें बाहर की दुनिया का कुछ भी अंदाज़ा नहीं था. उन्हें ये कुछ भी नहीं पता था कि बाहर की दुनिया कैसी होती है. द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर पेल एंड डर्टी एंड गिव रादर अनप्लीजेंट फीलिंग. On the walls are displayed the names of people who have given donations. There is a picture of Shakespeare on the wall. The picture of domes of big cities represent the quality of life in those cities. The early morning sky is shown as cloudless in another picture. मीन्स इस हर टाइप की वहाँ पे सीनरीज लगी हुई थी कि सिटी की लाइफ कैसी होती है, कितनी अच्छी इंचांटिंग लाइफ होती है. There's also a picture of beautiful Tyrole's valley, a region in the Austrian Alpine province, adorned with flowers. The world map, which divides the world into countries, big and small, symbolically gives the children the whole world. But all these pictures have no meaning for them. But all these pictures have no meaning to these children. The world depicted on these walls is not the world of these children. The world does not contain huge domes of prosperity or the scenic beauty presented in the picture. वो सिर्फ एक पिक्चर थी जिसमें सब कुछ ब्यूटीफुल नेचर डिपिक्टेड थी, पर उन बच्चों के लिए कुछ भी नेचर का कोई यूज़ ही नहीं था. उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं था जैसे, तो उनको कुछ भी पता ही नहीं था उसके बारे में कि वो क्या होता है, सिटी लाइफ कैसी होती है, नेचर कितनी ब्यूटीफुल है. A narrow street sealed in with a lead sky, far far from rivers, capes and stars of birds. Capes means mountains, stars of birds means ships in the sea. Unfortunately, the world is painted with fog, the fogless of hopelessness and hunger. उनकी जो पूरा वर्ल्ड था वो पूरा फॉग से भरा हुआ था. फॉग मीन्स होपलेस थे, वो बच्चे होपलेस थे और बहुत ज़्यादा हंग्री भी थे. Their future is grim and uncertain and sealed with a dark and dull sky. उनका फ्यूचर डार्क था, अनसर्टेन था, उनके फ्यूचर का किसी को कुछ नहीं पता था कि फ्यूचर का क्या होगा. The poet again says that the world is far away from the actual world of rivers and capes.
पोएट आगे कहते हैं कि उनका वर्ल्ड जो था बच्चों का, वो एक्चुअल रिवर्स, एक्चुअल केप्स, केप्स मीन्स माउंटेन्स, इन सबसे बहुत ज़्यादा दूर था. दीज थिंग्स आर लाइक स्टार्स इन द स्काई विच दे कैनॉट टच. और ये सब उनके लिए कुछ ऐसा था जैसे सी में शिप्स होते हैं या स्काई में स्टार्स होते हैं, तो जो हम लोग कभी उनको टच नहीं कर सकते. सी के शिप्स हम टच नहीं कर सकते, स्काई के स्टार्स हम टच नहीं कर सकते, मीन्स वो हमारे से बहुत ज़्यादा दूर होता है. तो वैसे ही उनका फ्यूचर भी उनसे बहुत ज़्यादा दूर था. उनको कोई भी कुछ एजुकेट करने वाला नहीं था, वहाँ पे उनको कुछ भी पता नहीं होता था. Surely, Shakespeare is wicked. The map is a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal for lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night. On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slums, so blot their maps with clumps as big as doom. Here the poet calls the portrait of Shakespeare wicked because it is meaningless for children going to a slum school. There is no quality education in these schools. The children will here never be able to learn about Shakespeare's work. पोएट कहते हैं कि जो शेक्सपियर का पोर्ट्रेट वहाँ पे लगा हुआ था वो उन चिल्ड्रन के लिए विकेड था. विकेड मीन्स यूजलेस. वहाँ पे स्कूल में पढ़ाई की कोई क्वालिटी नहीं थी, तो बच्चे शेक्सपियर के बारे में कभी भी नहीं लर्न कर पाते. उन्हें कभी भी शेक्सपियर की अचीवमेंट्स के बारे में, शेक्सपियर के बारे में उन्हें कभी भी पता नहीं चलता. द मैप इज ऑल्सो अ बैड एग्जाम्पल बिकॉज फॉर दिस चिल्ड्रन देयर क्लासरूम इज द होल वर्ल्ड फॉर देम. वहाँ पे जो पूरे वर्ल्ड का मैप लगा हुआ था वो भी उनके लिए एक बैड एग्जाम्पल था. बैड एग्जाम्पल मीन्स जो उनका क्लासरूम था वही उनके लिए वर्ल्ड था. वो क्लासरूम से बाहर कभी गए नहीं थे, उन्होंने बाहर की दुनिया का कभी नज़ारा देखा ही नहीं था. देयर इज नो वर्ल्ड बियॉन्ड देयर पॉवर्टी, हंगर एंड होपलेसनेस. उन्होंने अपने वर्ल्ड में मीन्स अपनी लाइफ में सिर्फ पॉवर्टी देखी थी, हंगर देखा था और होपलेसनेस देखी थी. उनका फ्यूचर डार्क था. सो दीज मैप्स आर अनरियल फॉर दीज चिल्ड्रन. तो इन मैप्स की कोई उन चिल्ड्रन के सामने कोई यूजफुलनेस नहीं थी. बिल्कुल एक ऐसी रियलिटी थी जो बहुत ज़्यादा डार्क रियलिटी थी. मीन्स वो मैप का होना ना होना उनके लिए एक समान था, एक ही बराबर था. द ब्यूटिफुल वर्ल्ड with its offering like the sun, ships, love and care only tempt them to steal because they cannot have all these worldly things. जो वर्ल्ड की इतनी सारी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं जैसे सन है, मून है, स्टार्स हैं, स्काइज हैं, शिप्स हैं, मीन्स बहुत सारे जो भी इंजॉयमेंट की थिंग्स है, वर्ल्ड की नेचर की ब्यूटी है, वो उनके लिए कोई भी कुछ नहीं थी, बिल्कुल यूजलेस थी. और उनके हंगर की वजह से वो रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए थे. रॉन्ग डायरेक्शन मीन्स वो स्टील करते थे, चोरी करके अपना गुजारा करते थे, कभी कुछ करते थे, मीन्स गलत गलत काम करते थे. द ब्यूटिफुल वर्ल्ड विद इट्स ऑफरिंग्स लाइक सन, शिप्स, लव एंड केयर ओनली टेम्प्ट देम टू स्टील बिकॉज दे कैन नॉट हैव ऑल दीज वर्ल्डली थिंग्स. ये सारी चीज़ों का एंजॉय उन्होंने कभी करा ही नहीं था, तो वो इन सबको बस देख कर खुश हो जाते थे. एक्चुअल में रियलिटी में उन्होंने इसको कभी ढंग से देखा ही नहीं था. They live in cramped holes like hutments, and there is no end to the misery. There is a perpetual state of gloom, hunger and despair. वो एक cramped holes में रहते थे. Cramped holes means कि ऐसा जहाँ पे उनके लिए कोई फ्यूचर नहीं था, बिल्कुल डार्कनेस थी, हर जगह डार्कनेस थी, ऐसी जगह पे वो रहते थे. और they live in cramped holes like hutments, and there is no end to their misery. और उनके लाइफ के डिस्पेयरनेस का कोई भी एंड नहीं था. मीन्स जैसी वो लाइफ अब जी रहे थे ऐसी वो आगे भी जिएंगे. कोई उनके लिए फ्यूचर बिल्डअप नहीं करने वाला था, उनके लिए कोई पढ़ाने वाला नहीं था. देयर बॉडीज लुक लाइक गार्बेज हीप्स. उनकी बॉडीज ऐसी थी जैसे कोई गार्बेज का हीप हो, मीन्स गार्बेज का माउंटेन बना हो. दे आर वेरी स्किनी एंड देयर बोन्स आर पीपिंग आउट ऑफ देयर स्किन. वो इतने ज़्यादा स्किनी थे, इतने ज़्यादा पतले थे कि उनकी बोन्स भी उनकी स्किन से बाहर आ रही थी, ऐसा लग रहा था. The state of poverty is intensified by the fact that the glasses which these children wear are cracked and look like broken pieces of a bottle. उन्होंने जो चश्मा लगा रखा था बच्चों ने, वो उनकी स्टेट ऑफ पॉवर्टी को शो करता है. स्टेट ऑफ पॉवर्टी मीन्स इतनी ज़्यादा गरीबी थी कि जो उन्होंने चश्मा लगा रखा था वो भी ब्रोकन ग्लासेस थे, जो उनकी स्टिक्स थे वो भी ब्रोकन थी. ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वाटर बॉटल की कोई ब्रोकन पीसेज हों. ऑल ऑफ देयर लाइफ इज बीइंग डिस्ट्रॉयड हियर इन द स्लम. इस स्लम एरिया में उनकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई थी. इस स्लम एरिया में उनकी पूरी लाइफ
डिस्ट्रॉय हो गई थी. ऑल ऑफ द टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम. स्लम में फॉगी फॉग था. फॉग मीन्स नो फ्यूचर, नो ब्राइटनेस, एवरीवेयर देयर इज डार्कनेस. The slum is like a blot as big as doom on the maps of these children. That is the lives of these children. वो स्लम उनके लिए एक बहुत ज़्यादा ब्लॉट था. सो ब्लॉट द मैप. ब्लॉट मीन्स उनके लिए कोई भी बहुत ज़्यादा बर्डन का कह सकते हैं. स्लम जो एरिया था जहाँ पे वो रहते थे वही उनका पूरा वर्ल्ड था जिसने उनके पूरे वर्ल्ड को, पूरी लाइफ को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town, and show the children to green fields, and make their world run azure on gold sands, and let their tongues run naked into books. The white and green leaves open history, theirs whose language is the sun. Now this stanza is blaming all the authorities. ये स्टैंडा पूरी उन अथॉरिटीज़ को ब्लेम करता है जो पुअर पीपल की हेल्प करने के लिए होती हैं, जैसे गवर्नर्स, इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. द पोएट वांट्स द सिविलाइज्ड वर्ल्ड टू ब्रिज द गैप बिटवीन देम एंड द वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन. These children will continue to suffer this hell unless government officials like governors, inspectors or educationists who visit their schools come forward to help them. वो एक गवर्नमेंट स्कूल था, जैसे स्लम स्कूल था, तो वहाँ पे गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स वगैरह मीन्स आते तो थे जो विजिट करते थे, पर कोई उनको हेल्प करने वाला नहीं था. जब तक कोई उनकी हेल्प नहीं करता तब तक उन चिल्ड्रन का फ्यूचर बिल्ड नहीं हो पाता. और वो चिल्ड्रन इसी हेल्प एटमॉस्फेयर में मीन्स इतने ज़्यादा डर्टी एटमॉस्फेयर में ही रहते. Poet wants the civilized world to bridge the gap between them and the world of these children. They should offer these children a glimpse of a better world so that the maps become their window to the beautiful and charming world outside. पोएट का कहना है कि जब तक कोई उनकी हेल्प नहीं करेगा वो इस एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकल कर पाएंगे और बाहर की दुनिया का एंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे, बाहर की दुनिया को एंजॉय नहीं कर पाएंगे. Then these windows of the elementary school classroom, which confine all their hopes and dreams, must be broken so that these children can be brought out in the green fields away from the filthy surroundings. फिर पोएट कहते हैं कि जब तक इनकी विंडोज़ तोड़ी नहीं जाएंगी, मीन्स उनके लिए जो बाहर के बैरियर्स हैं, जब तक इनको हटाया नहीं जाएगा तब तक वो अपने स्लम एरिया से निकलकर बाहर की दुनिया में नहीं आ पाएंगे, जैसे बाहर की ग्रीन फील्ड्स में नहीं आ पाएंगे. और अपने गोल्ड सैंड्स भी बीचेस जो सी शोर्स होते हैं, सैंड्स, वहाँ का नज़ारा भी नहीं ले पाएंगे. तो जब तक उनको कोई वहाँ से निकालने वाला नहीं होगा वो अपने आप से बाहर नहीं आ पाएंगे. मीन्स जो उनके सारे क्लासरूम के बाहर बैरियर्स हैं, गवर्नमेंट बैरियर्स हैं और जो भी जितने बैरियर्स हैं जो उनको अंदर के रोके रखे हैं, तो एक सबसे बड़ा बैरियर है उनकी एजुकेशन. मीन्स एजुकेशन उनको कोई ढंग से पढ़ाने वाला नहीं था, इसलिए उनको किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता था. The poet desires that these children should be allowed to run freely on the gold sands under a clear sky, that is make progress. पोएट का कहना है कि जब इन बच्चों को गोल्ड सैंड्स में रन करना चाहिए अंडर द स्काई, मीन्स सन के नीचे, स्काई के नीचे चिल्ड्रन को गोल्ड सैंड्स में पूरे भागना चाहिए, आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, मीन्स अपनी लाइफ में ग्रो होना चाहिए, प्रोग्रेस करना चाहिए. They should be allowed to have quality education. The poet feels that education can help them immensely because, according to him, history is written by those whose language has the warmth and energy of the sun. पोएट कहते हैं कि इनको क्वालिटी एजुकेशन देनी चाहिए, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देनी चाहिए. एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, मीन्स इनको इतने अच्छे से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि ये बहुत अच्छे से पढ़ लें, अपना फ्यूचर खुद से बिल्डअप कर सकें, क्योंकि he feels that education can help them immensely. पोएट का मानना है कि एजुकेशन उनको बहुत अच्छे से बिल्डअप कर सकती है. एजुकेशन की हेल्प से वो अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपनी लाइफ को टू द फुलेस्ट एंजॉय कर सकते हैं. बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू पोएट, हिस्ट्री इज रिटन बाय दोज whose language has the warmth and energy of the sun. मीन्स हिस्ट्री उन्हीं लोगों से बनती है जो अपनी लाइफ को फुलेस्ट टू द फुलेस्ट एंजॉय करते हैं. हिस्ट्री में वही लोग फेमस होते हैं जो अपनी लाइफ को टू द फुलेस्ट एंजॉय करते हैं. सो दिस कंप्लीट्स द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम.